Hello students, so today we are here to study about HTML tags and all of its attributes and the uses, its examples. So before this we have seen the HTML anchor tag, in which we have learned how to link a page or link an image. Then we have also seen the HTML image tag and its attributes. So today let us see the HTML table and table tags and its the subsequent tags. So HTML table tag is used to display data in tabular form, that is row and column. So there can be multiple rows and multiple columns, and there can be many columns in one row. So एक रो में more than one columns हो सकते हैं. So we can create a table to display data in tabular form using table element with the help of tr, td and th. What are tr, td and th? They are the sub tags, or we can say that attributes of the table tag. So table tag के subsequent tags है ये सब. So we will see this in the next slides. So in each table, table row is defined by tr. So tr का full form एक तरह से समझ जाइए कि table row होता है. And table header is defined by th. So th से table के heading को हम लोग define करते हैं. And the table data is defined by td tag. So अगर let's suppose that there is a table and we are having some data such as serial number, name and enrollment number. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, किससे, टी एच से. सबसे पहले टी आर से स्टार्ट करेंगे कि एक रो सेलेक्ट कर लिए. अब नाउ वी विल सी दैट दिस रो, इन दिस रो वी हैव टू गिव द हेडिंग. So after the tr tag we will use th tag. So th tag में we will use serial number, name and then enrollment number. And again we will close the tr tag. तो जब tr tag close करेंगे तो ये tr row close हो जाएगा. अब ये नेक्स्ट टी आर जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आता है, ये सेकेंड लाइन पे आता है, मतलब डेटा के फील्ड में. तो अब सीरियल नंबर 1 में मान लीजिए 1 है, दूसरा अमित है एक नाम, एंड रोल नंबर इज 005. तो अभी क्या होता है कि वी विल यूज़ द टी आर टैग. तो अगेन इट विल सेलेक्ट अ रो and we will not use th this time. We will use the table data tag, td tag. So in td tag we will insert 1, then again we will insert Amit, and then again we will insert 005. तो ये क्या होता है कि सबसे पहले टी एच टैग हर एक रो, टी आर टैग हर एक रो के लिए यूज़ करते हैं. एंड इन द हेडिंग फील्ड वी यूज़ टी एच टैग, एंड इन द डेटा फील्ड वी यूज़ टी डी टैग. So HTML tables are used to manage the layout of the page. Example, header section, navigation bar, body contents, footer section, etc. But it is recommended to use div tag. Div tag क्या होता है, divide tag होता है. ये हम लोग देख लिए हैं previous lectures में कि अगर ये मेरे पास पेज है and we have to divide this into 4 halves, then what we will do, we will divide the entire page into 4 halves so that we can use all the sections of this page. So let's move on to the HTML table tags and what are the tags which are used in HTML tag. So first one is table tag. So table tag, it defines the table. The second one is tr tag. So it defines the row, table row. th tag, it defines the header cell of in a table. तो ये हम लोग देख लिए हैं कि ये header cell define करता है. The next one is td. So td क्या करता है, table data define करता है. एंड कैप्शन टैग होता है कि अगर वी हैव टू, व्हेन वी आर यूजिंग अ टेबल एंड वी वांट टू गिव सम कैप्शन बिफोर दिस टेबल, अबाउट दिस टेबल कि ये टेबल किस चीज़ को डिफाइन करा, तो वी कैन यूज दिस कैप्शन टैग. सो कॉल ग्रुप, सो इट स्पेसिफाइज अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर कॉलम्स इन अ टेबल ऑफ फॉर फॉर्मेटिंग. तो जैसे हम वी सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स, और वी कैन से दैट वी सेलेक्ट द सेल्स इन अ एक्सेल सीट. तो उसी तरह से कॉल ग्रुप क्या होता है कि अगर वी हैव टू सेलेक्ट दिस ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक कॉल ग्रुप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉल टैग. सो इट इज़ यूज फॉर कॉल ग्रुप एलिमेंट टू स्पेसिफाई कॉलम प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच कॉलम. तो एक एक कॉलम का प्रॉपर्टीज़ को ये डिफाइन करता है. एंड टी बॉडी, इट इज़ यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल. अगेन इट इज़ सेम. एंड टी हेड, इट इज़ यूज टू ग्रुप द हेडर टैग. एंड टी फुटर, इट इज़ यूज टू ग्रुप द फुटर कंटेंट. तो हेडर टेबल के नीचे होता है, फुटर टेबल के नीचे होता है, हेडर टेबल के ऊपर होता है. सो दीज आर द HTML tags which we are going to use in the coming future. And let us see about an example of HTML tag. So let us see कि यहाँ पे हो क्या रहा है, how it is done.
सो सबसे पहले व्हाट वी आर यूजिंग अ टेबल टैग. सो टेबल टैग का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ टेबल टैग, दिस इज़ अ कंटेनर टैग, सो इट हैज़ द ओपनिंग एज वेल एज द क्लोजिंग टैग. सो टेबल टैग के अंदर वी यूज द TR टैग, दैट इज टेबल रो. So first of all, let us see that simultaneously. Let us see the output as well as the code, so that we can understand this code very easily. Oh, thing is, so let us see that first we have used TR tag, that is table row. So first of all, the pointer will select the table row, that is first row. This is the first row. तो अभी क्या हो रहा है कि वी आर यूजिंग TH टैग. ये अच्छे से देखिए, दिस इज अ TH टैग. तो TH टैग क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द हेडिंग ऑफ द टेबल. सो इन TH टैग वी आर इंसर्टिंग फर्स्ट नेम. तो हेडिंग में देख सकते हैं हम लोग, ये बोल्ड में है, वी हैव इंसर्टेड हेडिंग फर्स्ट नेम. अगेन वी हैव क्लोज दिस TH. ये पहला हेडिंग क्लोज हो गया यहाँ पे. अगेन वी आर ओपनिंग द TH टैग एंड वी आर राइटिंग द टेक्स्ट इन लास्ट नेम. तो ये लास्ट नेम यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है. अगेन वी आर राइटिंग मार्क्स. तो ये इस तरह से टेबल का 3 हेडिंग हो गया. अब ये TR जब हम क्लोज करते हैं तो ये क्या होता है, पहला रो क्लोज होता है यहाँ पे एंड द पॉइंटर गोज टू द सेकेंड रो, दैट इज ओवर हेयर. तो अब सेकेंड रो में वी सी दैट वी आर अगेन ओपनिंग द TR टैग, दैट इज रो इज सेलेक्टेड एंड इन दैट वी आर इंसर्टिंग TD. तो TD इज टेबल डेटा, और वी कैन से दैट टेबल नॉट डेफिनेशन, इट्स टेबल डेटा ओनली. सो टेबल डेटा में सबसे पहले क्या वी आर यूजिंग दैट सोनू. So first of all, this Sonu is inserted in this TD, and when we are closing this TD, that means this cell is completed and we have to move to the next TD, that is to the next cell. हमें next cell पे जाना है जिसका वैल्यू जायसवाल है. So ये जायसवाल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड सिमिलरली TD का 60 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. So again when we are closing this TR tag, then this row is also gets closed, and again we are opening TR. Inside that we are using TD tag. Again we are opening TR, TD, TR, TD. So like this we will complete the all the table row and table data. So ऐसे करने के बाद at the last we have to close the table tag as it is the container tag. So यहाँ पे जब table tag close करते हैं तो ये मेरा table एक बन के ready हो जाता है. So this was quite easy. So let us move on to the हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर कहीं पे नहीं है. बॉर्डर मैंने ड्रॉ किया था बट यहाँ पे बॉर्डर नहीं है. तो बॉर्डर यूज़ करने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज़ एट्रीब्यूट बॉर्डर. सो हाउ टू यूज़ द एट्रीब्यूट बॉर्डर, देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग HTML कोड एंड द सेकेंड वन इज़ बाय यूजिंग CSS. तो CSS हमारे सिलेबस में नहीं है हम लोग, बट वी विल स्टडी अ लिटिल बिट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स. सो यहाँ पे बॉर्डर टैग को यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. So we can use border attributes of table tag in HTML to specify border. तो अभी क्या करें, जैसे यहाँ पे टेबल ओपन कर रहे थे लास्ट, जो हम लोग लास्ट एग्जांपल देखे थे, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर ओनली गिविंग द टेबल टैग. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1. तो यहाँ 1 यूनिट का मतलब 1 पिक्सल एक समझ जाइए, तो 1 पिक्सल का एक बॉर्डर बन जा रहा है. एंड द सेम कोड इज रिपीटेड. So no need to go through this and this table border is okay. If we will put table border equal to 2, तो जो ये border का size है ये इससे डबल हो जाएगा. So यही था border. एंड ये CSS का प्रॉपर्टी है कि टेबल border कैसे यूज़ करते हैं, बट ये उतना सिलेबस में नहीं है, बट मैंने डाल दिया कि एक बार देख लेते हैं. सो स्टाइल के अंदर कैस्केडिंग स्टाइल से जो होता है CSS, उसके स्टाइल के अंदर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं जिसमें टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा इन दोनों के बीच का क्या करते हैं हम, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर ऑफ पिक्सल 1 हम स्टोर करते हैं. तो ये पिक्सल 1 कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हमें पिक्सल 2 करना, साइज़ ऑफ बॉर्डर विल बी 2 अगर करना है, तो हम क्या करते हैं, पिक्सल का साइज़ इंक्रीज़ करके 1 से 2 कर देते हैं. सो इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट वन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस HTML border, and we will study the another attributes of HTML, that are the cell spacing, cell padding and the table width in the next lecture. Till then, thank you.